A very good afternoon and a very warm welcome to 25th Water Talk, being organized by National Water Mission and is supported by Water Digest. I'm Anupma, the director and editor of Water Digest, and it is an honor and a matter of pride for us to be part of this wonderful initiative by National Water Mission. There had been so many water talks being delivered since long, and this time it is going to be one special one, and you'll soon know why. We have with us Shri Ashok Kumarji, Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission, Ministry of Jal Shakti, who had been leading one of the greatest campaign, the biggest campaign launched recently on Catch the Rain, Where It Falls, When It Falls. And it was recently even launched by Honorable Prime Minister Modi. And also he had been driving the water talks and water tech talks every month. We also have with us one of the known name and popularly known as Water Man, Dr. Rajendra Singh ji with us, and we will be hearing more from his side. But before we officially start the program and hear from his side, I have a short announcement to make. Like many other initiatives of Ministry of Jal Shakti, there is one initiative, Ganga Quest, which is led by National Mission of Clean Ganga in association with Recrace. And Water Digest also takes pride to be part of this Ganga Quest campaign. The campaign is an interesting one, which gives you an opportunity to learn more about your rivers, especially Ganga. And I'm happy to announce that the registration was officially opened and launched on this entire Ganga Quest was launched on World Water Day. Until now, since when it has been open, till now, there had been more than 8.55 lakhs registration for the Ganga Quest. The quiz is currently on, and a lot of people are joining and playing the quiz. So it's not about just registering for the quiz, it's also about participating. The quiz is live, so whosoever has registered, please come join live the quest and also take away a couple of good prizes. Apart from that, whosoever has not registered, please register on www.gangaquest.com, and we look forward to having your participation for the Ganga Quest. In case you have any query, you may directly write to us. You may directly click on the website of National Mission of Clean Ganga or write to us directly at anupama@thewaterdigest.com. So now, without further ado, I would like to welcome Shri Ashok Kumarji, Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission, like I said, who has been leading one of the biggest campaign, Catch the Rain, Where It Falls, When It Falls. So I would like to invite Ashok ji for his welcome address and also tell us more about the speaker and the talk selected today. We have the eminent speaker today, and I leave it to Ashok ji to tell more about our honorable speaker today. Over to you, Ashok ji. Thank you, Anupama. Thank you, Anupama. It's a great opportunity here. Today is a very special day for us. A बहुत खास दिन है क्योंकि this is the Silver Jubilee edition of the Water Talk. This is the 25th Water Talk. तो इस 25th Silver Jubilee के लिए हमारे लिए एक खास मेहमान है because we have the one of the biggest person in water sector with us today. And just 2 minutes for a brief introduction. हमने ये वाटर टॉक कार्यक्रम 2019 मार्च 22 वर्ल्ड वाटर डे में शुरू किया था. उस समय फिजिकल इवेंट था. 300 लोगों को इकट्ठा करके डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हमने ये प्रोग्राम की छोटी सी शुरुआत की थी. तो 1 साल फिजिकल टॉक चला था. उसके बाद व्हेन कोविड आ गया तो हमको सबको प्रॉब्लम हो गया था. देन वी वेंट ऑन टू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो मई 2020 से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ गया. उसका बहुत फायदा हुआ कि हमारा रीच और नंबर बहुत बढ़ गया था. तो हमने जब ये ई वाटर टॉक अनुपमा के वाटर डाइजेस्ट के साथ शुरू किया था, तभी हमने देखा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स दूर दूर देशों से भी आते थे. हमारे क्वेश्चंस कभी ऑस्ट्रेलिया से आते थे, कभी दुबई से आते थे, कभी नाइजीरिया से आते थे, कभी अमेरिका से आते थे.
तो एक तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस है वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बैंगलोर, चेन्नई, तरह तरह के दूर दूर इलाके से आते थे। तो एक तो हमारा रीच बढ़ गया था। फिर हमने ये मेन प्लेटफॉर्म से करके फेसबुक में लाइव करने शुरू कर लिया, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आते थे और कभी कभी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से कभी हैंग होता था। तो वी शिफ्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू फेसबुक। तो अभी हमारे लाइव बहुत सारे लोग देख रहे हैं। वो अक्टूबर में जब हमारा मंत्री साहब वाटर टॉक में रहा था, उस दिन अक्टूबर वाटर टॉक में 2.5 लाख लोग लाइव थे। मतलब 2.5 लाख लोग हमारा एक साथ वो मिनिस्टर का भाषण सुनने के लिए हम जुट गए थे। तो इसलिए लोगों की संख्या हमारे पार्टिसिपेशन में आने वो भी बढ़ गया था, ज्योग्राफिकल रीच भी बढ़ गया था। तो वो सिलसिला हम करते रहे। नाउ as we thought 25th anniversary jubilee celebration, silver jubilee के लिए we should get a खास मेहमान। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उनके बारे में थोड़ी देर में बता दूंगा। और खास बात इसलिए भी क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 22, 2021 हमारे पिछले महीने में एक दुनिया के सबसे बड़ी मुहिम स्टार्ट किया था वाटर के लिए, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। मतलब जहां बरसे जब भी बरसे रेन को पकड़ना है। उसी कैंपेन उन्होंने 22 मार्च को यहाँ दिल्ली से शुरू किया था। ही एड्रेस्ड ऑल दी सरपंचेस। इंडिया में 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत से उनके इलेक्शन के स्टेट्स को छोड़ के बाकी सब सरपंचों को हम ऑनलाइन लाए थे। और देश के सब डीएम्स जो है कटिंग एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ग्राउंड लेवल पे जो कटिंग लेवल्स के सरपंचेस और डीएम्स को मिला के एड्रेस करके, ऑफिसर्स को एड्रेस करके, जनता को एड्रेस करके प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम शुरू किया था। उस समय वी हैड लार्ज पार्टिसिपेशन। उस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने काफी बातें, कैसे इस वाटर जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाना, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की उन्होंने सरपंचों से इंटरेक्शन भी किया था। उस समय ये देश के चारों कोने से 5 सरपंच को चुना गया था। उससे इंटरेक्शन करके उससे जानकारी भी ली, क्या कैसे वो वाटर को संरक्षण करने के लिए काम किया था, उसके बारे में जानकारी भी दी। और उन्होंने आदेश भी दिया कि अगले 3 महीने तक मनरेगा के जितने भी फंड्स है वो पूरे के पूरे वाटर कंजर्वेशन में ही यूज करेंगे। और काफी आदेश दिया, वो बोला कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। पुराने हमारे ट्रेडिशनल वाटर वेल्स बॉडी से उसको रिपेयर कराना है, इंक्रोचमेंट्स हटवाना है, ताकि उसका तालाबों और टैंकों का गहरीकरण कराना है, रिवर को रिजुविनेट कराना है। ये सब उन्होंने खास तौर पर आदेश दिया ये सब करने के लिए। और उसके बाद ऑफिस मिशनरी भी जोर में लगे। हम कल इंडिया के सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज के साथ डिस्कस किए थे। हमारा सेक्रेटरी साहब और मैं बैठ के अपने देश के सारे चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की। वो लोग भी तैयार है, जुट गया है। और थोड़ा कोविड का प्रॉब्लम है सबके लिए, उसी में भी डीएम्स बिजी है। फिर भी हमने बोला कि एक डीएम उसमें रहेंगे तो उनका एक सेकंड लेवल ऑफिसर को देके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का काम शुरू करें। और उन्होंने दिया भी है। और पिछले हम 2019 में वाटर जल शक्ति अभियान किया था, उसमें खाली 256 डिस्ट्रिक्ट को जेके किया था, उसमें भी 1/3 ब्लॉक्स लिया था। मगर इस साल हम देश के सब डिस्ट्रिक्ट, सब शहरें, सब गांव, सबको मिला के ये अभियान चला रहा है। सो इट्स probably the largest campaign ever in the world on rainwater harvesting. And also the launch was also, I said, very, very unique in the sense that Prime Minister addressed the entire nation and khas taur par the sarpanches of the people. Not only that, he sent letters, personal letters to all the sarpanches, 2.5 lakh sarpanchon ko
अपने खुद सिग्नेचर करके प्रधानमंत्री ने लेटर भी भेजा कि आप अपने यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं, संरक्षण करें। और उस दिन देश के सब ग्राम पंचायत में स्पेशल ग्राम सभा लगाया, ग्राम सभा लगा के करा दिया कि आप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करें। तो मैं एक 3 मिनट का एक वीडियो प्रेजेंट कर लूंगा और उसके बाद मैं अपने आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करके उनको पूरा फ्लोर छोड़ूंगा। I'll take 2 minutes for video, a 3-minute video. जल एक अमूल्य निधि है और इसे बचाने की विधि है वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे न केवल आम व्यक्ति का
ये था हमारा वीडियो। प्रॉब्लम टेक्निकली खराबी के कभी कभी पॉइंट्स मिस हुआ होगा, बट आई होप दैट यू हैव सीन द प्रोग्राम। सो दिस प्रोग्राम कैस्टरेन हमने शुरू कर लिया, और इसके बारे में बात करने के हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं। उनके बारे में जितना बोले कम है, क्योंकि आज के पूरे दिन उनके बारे में बता सकते हैं। ये इनका नाम भी जलपुरुष, इंडिया में इनको जलपुरुष के नाम में जाना जाता है। वो बहुत सालों में वाटर के सेक्टर में काम किया है, काफी लोगों को प्रोत्साहित किया है। He has become a role model for many people. He has got a list of awards. रामन मैगसेसे अवार्ड से लेके जमनाल बजाज अवार्ड से लेके नोबेल प्राइज फॉर वाटर, स्टॉकहोम वाटर अवार्ड 2015 में उन्होंने हासिल किया था। एंड Guardian named him in the list of world's 50 people in 2008 who can save planet Earth. He did, and he had got Ahimsa Award in 2018 and बहुत सारे awards जीते हैं। And इनका काम के recognition के लिए he has been felicitated by many international organizations. UN में भी उनका काम के तारीफ किया है। और इन्होंने पिछले 44 years में almost 12,000 water structures बनाए हैं, और almost 1,200 villages के लोगों को वहाँ पे water security बनाया। And we revived almost 12 rivers in the country: Aravi, Ruparel, Sarsa, Bagagni, Maheshwara, Sabi, Tibra, Sarni, Jazwali राजस्थान में, और Agarni और Mahakali in Maharashtra, and इंचना हलीनई इन कर्नाटका। बहुत सारे नदियों का पुनर्जीवन किया उन्होंने और उनकी टीम ने। और उन्होंने एक संस्था का भी सेटअप किया था, तरुण भारत संघ। उन्हीं के साथ से भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते अपने काम करते रहते हैं। He had also started a very interesting tour called World Water Ethics, Justice and World Peace करके 2015 अप्रैल में यूरोप के पूरे देशों और अफ्रीका के राष्ट्रों में देशों में ट्रैवल करके वहां पे वाटर के बारे में अवेयरनेस जताया। और दे आर ऑल इंस्पायर्ड बाय द वर्क ही डन इन इंडिया, एंड आल्सो हिज वर्क इज बीइंग अ बिग इंस्पिरेशन फॉर द पीपल इन द थर्ड वर्ल्ड देयर। He considers Pancha Bhutas as God, and he wants that all these 5 elements to be in harmony so that the people can live peacefully here. He also considers Neer, Nari and Nadi as Narayan. उनका तो इंडियन फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं, देश की जनता से जुड़े हुए हैं, उनके एस्पिरेशन से जुड़े हुए हैं। इसलिए whatever he says is accepted by people. Whatever he does is an inspiration for people. And so he, in fact, he had done a lot of work in various sectors. उन्होंने PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में to save Aravalli Hills. He and his team of people actually saved the lot of dams being constructed in Ganga Nadi, and he actually initiated all the concept of this Aviral Dhara in Ganga. तो उनके परिश्रमों की वजह से गंगा में अविराल धारा का वो जो भी डिस्कशन हो रहा है वो इनके इनिशिएशन से आया है। He also talks about traditional water harvesting structures and traditional water harvesting knowledge. So I am leaving for him to discuss about it, because a person totally committed to the water using the traditional knowledge of India. We have a huge history and traditional wisdom associated with us. So he is one person who will join us with the past and do examples of the various traditional water harvesting structures which we had, and how to revive it and how to catch the rain. So when we say catch the rain, where it falls, when it falls, it is basically a manifestation of his thoughts. We are trying to say that अगले 3-4 महीने में we should make बर्तन, नेचुरल बर्तन तैयार करके रखना चाहिए, ताकि जून जुलाई अगस्त में when बारिश comes, we will be ready to catch it. So probably we will be helped if we catch the water. Probably we can have a tanker Mukt Bharat later on. Thank you for joining us, Rajan Singh ji. We are waiting for you to speak. A lot of people are waiting for you. I'm sorry that took more time because I had to introduce you
with so much of awards, so much of recognition international. It is a great honor to be here with you. Thank you, Rajat Singh ji. Dr. Ashok Kumar ji, really thanks from my heart, because आपने मुझे मेरी पुरानी यादें इंट्रोडक्शन के दौरान दिला दी। मैं अनुपमा जी को और इस मीटिंग में जुड़े सब साथियों को रियली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जो ये कैच द रेन्स वेयर द फॉल एंड व्हेन द फॉल, ये एक मैसेज है। इस मैसेज में से इस कंट्री के लिए एक वाटर लिटरेसी की मूवमेंट निकलती है। जैसे मैं डॉक्टर साहब पहले बोलता था कि किसी कंट्री को यदि ड्राउट और फ्लड फ्री करना है तो वहां के फ्लो को स्लो कर देना चाहिए। आपने उसको और बहुत तकनीकी तौर पर बहुत शार्पन ढंग से कहा है कि ये जो फ्लो है और फॉल है, इनको हमें ठीक से मैनेज करना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले फ्रॉम माय हार्ट आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपकी मिनिस्ट्री ने एक इस कंट्री को आगे का जो प्लान है वाटर लिटरेसी का, अब जब मैं वाटर लिटरेसी कहता हूं तो भाई साहब दो शब्द निकलते हैं उसमें से। एक तरफ है वाटर कंजर्वेशन और दूसरी तरफ है स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। तो ये जो दो शब्द हैं, इन दोनों को जोड़कर हम आपकी जो जल शक्ति मंत्रालय की ये कैंपेन है, इस कैंपेन की सक्सेस की आशा करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारी यंग जनरेशन को ये समझ में आ जाए कि कभी हम पानीदार देश थे। हम पानीदार देश तब तक थे जब तक हम अपनी नेचर को और ह्यूमन काइंड को दोनों को इक्वल रेस्पेक्ट करते थे। हमारी नेचर हमें हमारी लाइफ की जरूरत पूरी करने के लिए पानी और सब कुछ, हवा, सब कुछ देती है, लेकिन जब हम ग्रीडी हो जाते हैं तब वो जरूरत पूरी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं कि जब दुनिया में कोई धर्म नहीं था तब एक शब्द था भगवान, और उस भगवान का मतलब होता है भय से भूमि, गय से गगन, वै से वायु, ऐसे अग्नि और नय से नीर। तब हमारे मन में रेस्पेक्ट ऑफ भगवान मीन्स रेस्पेक्ट ऑफ नेचर। हम उसको रेस्पेक्ट इसलिए देते थे कि हम ये जानते थे कि हमें उसने बनाया है। दैट भगवान इज ए क्रिएटर फॉर अवर लाइफ। तो वो जो सेंस थी एक, उस सेंस में जो रियल साइंस थी, द साइंस विद सेंस, वो जब तक इस देश में चली तब तक हम ग्लोबल टीचर थे, दुनिया को सिखाने के लायक थे। अभी दोबारा से हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर कुछ दुनिया के मुकाबले और अच्छी चीजें बची हैं, जैसे रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, रिट्रीट, रिसाइकल एंड रीयूज एंड रिजुनेट प्लेनेट बाय दिस वाटर। ये जो 3 R हैं वो ग्लोबली सब लोग यूज करते हैं, रिट्रीट, रिसाइकल एंड रीयूज, बट भारत 6 R यूज करता था। तो हम यदि अपने देश के लोगों को इस वाटर लिटरेसी की कैंपेन में कैच द रेन वेयर द फॉल एंड व्हेन द फॉल, ये सचमुच एक कीवर्ड का मैसेज है। इस कीवर्ड के मैसेज से हम लोग इस कंट्री में एक बार फिर से रेस्पेक्ट ऑफ वाटर्स की बिगनिंग कर सकते हैं। और वो यदि बिगनिंग हम कर पाते हैं
तो फिर आप समझ सकते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमारा पिछली मॉडर्न एजुकेशन के कारण रेस्पेक्ट ऑफ वाटर रिड्यूस हो गया। अब उतना रेस्पेक्ट हमारे व्यवहार और संस्कार में पहले जैसा बचा नहीं है। लेकिन फिर भी आपका ये जो कैंपेन है ये रिजुनेट कर सकता है उस चिंतन को, उस थिंकिंग को, उस नजरिए को। हमेशा भारत एक नए नजरिए के साथ देखने की क्षमता रखता है। इसलिए आपका ये जो नजरिया है आपकी मिनिस्ट्री का, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली ले रहा हूं। मुझे इसमें से काफी डेप्थ नजर आती है, क्योंकि ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ यदि हम वाटर लिटरेसी मूवमेंट की तरफ आगे लेके जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी का चूंकि इसमें इंटरेस्ट है, तो प्रधानमंत्री जी दो शब्द यदि हमारी एजुकेशन में जल का स्कूल से लेकर और कॉलेज में अनिवार्य शिक्षण कर दें तो वो एक बड़ा सक्सेस हो जाएगा प्रधानमंत्री की इस रिजीम में। दूसरा, मेरे मन में एक ये बात और थी कि हम अभी जो एक्सट्रैक्शन, एनक्रोचमेंट और पॉल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग को यूज कर रहे हैं, उससे हमारी अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो रहे हैं। तो हम यदि मोटे तौर पर देखें तो भारत अब रियल भारत का जो बैंक है वो तो हमारे अंडरग्राउंड एक्यूफर्स हैं, और यदि हमारे अंडरग्राउंड एक्यूफर्स ओवरड्राफ्ट होंगे तो हमारा फ्यूचर थ्रेटन होगा, हमारे फ्यूचर में कुछ संकट बढ़ेगा। इसलिए अब हमारी शिक्षा में रिचार्ज और डिस्चार्ज का बैलेंस बनाने की जरूरत है। यदि हम रिचार्ज और डिस्चार्ज का बैलेंस बनाएंगे तो डॉक्टर साहब, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इंडिया फिर से एक बार लीडर बन सकता है दुनिया का, नेचर में और ह्यूमन काइंड में। इसलिए हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे जो रिलेशनशिप है विद नेचर एंड विद ह्यूमन काइंड, उसको थोड़ा इक्वली रेस्पेक्ट के साथ जोड़कर देखें। देखो, मैं पिछले 6 सालों से अफ्रीका, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया और यूरोप के शहरों में घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? क्योंकि जब मुझे ये अवार्ड मिला, पता नहीं आप उस वक्त थे क्या मेरे एक्सेप्टेंस भाषण में, तब मैंने कहा था कि वन वाटर वन प्लेनेट, और हम इस पैसे से जो पैसा मिला है इससे दुनिया में एक वाटर इथिक एंड जस्टिस की जर्नी करेंगे। वो हमने की तो हमें 2-3 बातें समझ में आई कि ये जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सिनेरियो है, इसके कारण बहुत सारे लोग लाचार, बेकार, बीमार होके डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये ही हमारे थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर का बेसिस होगा। पहले जो 2 वर्ल्ड वाटर वॉर थे, पहले जो 2 वार थे, वर्ल्ड वॉर थे, वो डिफरेंट थे। लेकिन ये जो तीसरा होगा, ये जरा बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पर, क्योंकि दुनिया में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फॉर्चुनेटली अभी इंडियन, एक अच्छी बात कह सकते हैं कि इंडियंस के बारे में अभी ये आरोप नहीं लगता कि वो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें दुनिया अभी भी इकोनॉमिक क्रिएटर मानते हैं, इकोनॉमी रिफ्यूजी मानते हैं कि भाई हम इकोनॉमी बढ़ाते हैं, जहां भी जाते हैं उन देशों की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते हैं। तो फॉर्चुनेटली अभी हम पर वो आरोप नहीं है। लेकिन यदि हमारे भी अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गए और हमारी नदियां भी बिल्कुल सूख गई, तो फिर ये दुनिया हम पर भी वो आरोप लगा सकती है। इसलिए हमें उस आरोप से बचना अब जल्दी बहुत जरूरी है। हमें अगले 5 वर्षों में रिचार्ज और डिस्चार्ज का संतुलन बनाने की जरूरत है। ओनली इन 5 ईयर हम जितना डिस्चार्ज कर रहे हैं उस डिस्चार्ज को थोड़ा कम करें, और उसको कम करने के लिए खेती में जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हम एग्रीकल्चर के लिए डिस्चार्ज कर रहे हैं।
तो एग्रीकल्चर के लिए जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो वहां क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ यदि लिंक कर देंगे तो भाई साहब 40% वाटर यूज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। उस पर हमें जाने की जरूरत है, उस पर हमारा कोई सरकार काम करना चाहिए, राज्य सरकारों को भी करना चाहिए और भारत सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि अब तो भारत सरकार ने मान लिया है वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। तो जब प्रिंसिपली हमारी सरकार एग्री कर रही है तो हमारी सरकार को थोड़ा ये जो नेशनल क्लाइमेट चेंज के प्लान है उसमें थोड़ा इस तरह से हमें आगे जाने की जरूरत है। नहीं तो देखो हालत ये होगी भाई साहब, मैंने देखा है अफ्रीका से जो लोग उजड़ के जाते हैं उनको अब यूरोप के शहरों में क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहकर टेंस बढ़ जाता है, और टेंस बढ़ने के बाद इन लोगों के सामने भी कोई और दूसरा चारा नहीं होता। और ये जो टेंस है, ये टेंस बहुत खतरनाक है। इसलिए हमें कम से कम, भारत एक बड़ा देश है, एक सक्षम देश है, एक पानीदार देश है, भारत को इस क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने को सेव करके रखना चाहिए। मैं आपसे इतना ही बता दूं कि यदि भारत को इसमें आगे होना है तो जो आपने कैच द रेन्स वेयर द फॉल एंड व्हेन द फॉल, इसको इंडियन कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट के मॉडल पर लेकर मूव करना पड़ेगा। ये जो हमारा मॉडल होगा, जो आपने स्लोगन दिया है, इस स्लोगन में से एक बहुत अच्छा मॉडल निकलता है, और वो जो मॉडल होगा वो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों में हमें आगे लेके जाएगा। भाई साहब, मेरा जो पिछला 40-45 सालों का अनुभव है, मैं कॉन्टिन्यूसली एक ही जगह पर काम करता रहा। मैंने देखा कि जब भी हम कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट करते हैं तो लोगों के इमोशंस जुड़ जाते हैं पानी और प्रकृति के साथ, और फिर वो उसको अपना मान के थोड़ा सोच समझ के उपयोग करते हैं, फिर डिसिप्लिन यूज करते हैं, फिर डिसिप्लिन के लिए कानून कायदे बनाते हैं, फिर रिवर पार्लियामेंट बनाते हैं, फिर ग्राम सभा में निर्णय लेते हैं कि भाई कौन सी फसलें बोना कौन सी नहीं। इसलिए हमारा वो जो मॉडल है, उस मॉडल में हम दुनिया से आगे हैं अशोक जी अभी भी। इसलिए हम लोगों को थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और यदि हम उस पर फोकस करेंगे तो हम देख सकेंगे कि ये जो हमारी डिस्चार्ज की कंडीशन है, इस डिस्चार्ज की कंडीशन को हम रियली एड्रेस कर सकेंगे, और हम अपने एक्यूफर को डिस्चार्ज होने से बचा के दोबारा से पानीदार देश बन सकेंगे। ये बनाने के लिए हमें बस ये समझना पड़ेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना। क्या हो गया है अशोक जी कि जो इंजीनियर और टेक्नोक्रेट्स हैं वो अपने तरीके से साइट सिलेक्शन करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, उनका जो मैनुअल जो कुछ बनाना वो अपना होता है, और वो साइंटिस्ट को कभी कभी फॉर्मली, क्योंकि एक बाइंडिंग होती है, उस नाते पूछ लेते हैं, पर कभी भी हमारे इंजीनियर्स के मन में ये नहीं आता कि ये जो बारिश रेनफॉल है, ये रेनफॉल कैसे अंडरग्राउंड एक्यूफर में चला जाए जिससे एवोपरेशन लॉस ना हो। तो एवोपरेशन लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को यूज नहीं करते। मेरा कहना यह है कि हमें साइंस विद सेंस and engineering and technology with natural concern इंटीग्रेट करके हमें यूज करनी होगी। यदि हम उसको इंटीग्रेट करके यूज करेंगे तो फिर मेरे जैसा मामूली आदमी जो ना तो वाटर साइंटिस्ट था ना 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 कुछ इकोलॉजिस्ट था, वो आपके सामने बैठ के कह सकता है कि हमने पिछले 45 सालों में 12 नदियों को रिजुनेट किया। तो ये कैसे मैं बोल सकता हूं? मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हमने लोगों का जो इमोशन है, लोगों का जो एक्शन है, लोगों का जो व्यवहार और संस्कार है, वो जो उनका वेबियल चेंज है, उसको हमने नेचर के अनुकूल करके इसमें सक्सेस पाई। और
हमने ये जो अंडरग्राउंड फ्रैक्चर्स हैं, एक्यूफर्स हैं, जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं वहां एक चेक डैम बना दिया, जहां मिक्स है वहां अलग बना दिया। तो हमने अंडरग्राउंड एक्यूफर्स के कैरेक्टर को समझकर सरफेस के ऊपर पानी का प्रबंधन किया। तो जब आप सरफेस को और अंडरग्राउंड को दोनों साइंस को विद सेंस जोड़ लेंगे तो भाई जी फिर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग बहुत सरल होती है आपके लिए यूजफुल होना। लेकिन हम कई बार साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को प्रिफर कर लेते हैं और साइंस को भूल जाते हैं, और साइंस विदाउट सेंस हम लोग उस काम में लग जाते हैं। इसलिए हमने आजादी के बाद जो भी बड़े बड़े पानी के काम किए उनका वो एक पॉजिटिव सस्टेनेबल इम्पैक्ट नहीं आया। नहीं तो भारत तो सनातन विकास का देश है। भारत तो सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य नूतन निर्माण की प्रक्रिया चलाना। सनातन जो है वो केवल हिंदू रिलीजन वर्ड नहीं है। सनातन है हमारा साइंटिफिक वर्ड है कि हम रिबर्थ में बिलीव करते हैं। तो रिबर्थ फॉर ओनली फॉर ह्यूमन, नो, फॉर ह्यूमन एंड फॉर नेचर ऑल। तो हम इस रिबर्थ रिजुविनेशन की प्रोसेस से सनातन विकास के रास्ते पर आगे जा सकते हैं। इसलिए इसमें आगे जाने के लिए हमें ये देखना होगा कि एक नदी में, एक रिवर बेसिन में कितनी तरह की टाइपोलॉजी होती है, ग्राउंड वाटर की कंडीशन कैसी होती है, और उसको हम कैसे समझ के ठीक कर सकते हैं। मोटे तौर पर ये 6 तरह की होती है। इसको यदि हम समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा। और उसको पॉसिबल करने के लिए कंजर्वेशन एंड decentralized use of natural resource and community driven decentralized management, community operation, एक तरह से हमें जो हमारी लोकल टेक्नोलॉजी है उसको और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को, इंडियन विजडम को, ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट को हम यदि काम में लेंगे तो अभी भी लोगों के इमोशनल हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारी सरकार के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी सरकार को लोग मानेंगे कि भाई देखो ये पुराने ज्ञान तंत्र में से कुछ नए अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें करने की जरूरत है। और हमें यंग लोगों को रिसोर्स मैपिंग से लेकर साइट सिलेक्शन और उसके कंट्रीब्यूशन, मोबिलाइजेशन, इन सब कामों की ट्रेनिंग देकर उनको लगाने की जरूरत है। जब हम यूथ को इस काम में लगाएंगे तो हमारा ये काम कैच द रेन सक्सेस हो जाएगा निश्चित ही, क्योंकि यूथ ही इसको सक्सेस करेगा। और इसको सक्सेस करने के लिए इनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनकी ट्रेनिंग करके इनको इन्वॉल्व करना, जिससे इनके अंदर बिलोंगिंगनेस एंड सेंस ऑफ ओनरशिप बिल्ट हो सके। यदि वो बिल्ट हुई तो भाई जी हमारा ये जो कैच द रेन है ना, वो निश्चित ही सक्सेस हो जाएगा। हमें ये नेचुरल इंजीनियरिंग पे ध्यान देना होगा कि जहां स्टीप स्लोप्स हैं वहां हम कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बनाएं, जहां नेचुरल डिप्रेशन है वहां हम कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाएं, और जहां जेंटल स्लोप है वहां सीधे चेक डैम बनाएं। तो जब हम नेचुरल इंजीनियरिंग को और कंटूर्स को और ये जो हमारी एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को रेस्पेक्टफुली काम में लेते हैं तो फिर हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। हमें देखो, हमने कुल 11,800 स्ट्रक्चर्स बनाए भाई साहब, 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए, और इन 2.5 लाख कुओं के कारण 19 जिलों में 17 लाख युवा लोग वापस अपनी जमीन पर आकर खेती करने लगे। जब पानी नहीं था तो गांव छोड़ के चले गए थे, जब पानी आया तो लोग भी आ गए और खेती करने लगे। तो ये जो पानी है
वो लोगों को अपने आप सिखा देता है, प्रकृति भी सिखा देती है क्या करना क्या ना करना। हम बस उनको थोड़ा रियलाइजेशन और इंटरलाइजेशन कराते रहें। युवकों को रियलाइजेशन और इंटरलाइजेशन कराने का रोल आपका हमारा है। बाकी तो करना उनको है भाई, उन्हीं को आगे आके करना पड़ेगा। जब वो आगे आके करेंगे तो वो सस्टेनेबल होगा। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि जब हमारी नदियां सूख गई थी तो सब सरफेस अंडरग्राउंड ओवरड्राफ्ट, अंडरग्राउंड, डीप अंडरग्राउंड और डीपेस्ट अंडरग्राउंड एक्यूफर ऑल इज ड्राई। हमने जहां पानी बरसता था वहां उसको पकड़ के चलना सिखाया। जब वो चलने लगा तो उसको रेंगना सिखाया, और जब वो रेंगने लगा तो धरती का खुला पेट देखकर उसमें बैठाया। फिर पानी हमारे कुएं में आया और फिर हम खेती करने लगे। सिंपल साइंस है, इस साइंस में कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। दिस इज रियली सिंपल साइंस। और आज इस काम के कारण आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हैं। 1985 में ऊपर की पहाड़ी, ये 20 फरवरी का है। ऊपर की स्लाइड भी 20 फरवरी की है और नीचे की स्लाइड भी 15 साल बाद 20 फरवरी की है। तो ये जो फोटो पॉइंट मॉनिटरिंग है, ये लोगों को बिना कहानी कहे अपने आप कहानी बता देती है। लेकिन वो होनी चाहिए साइट स्पेसिफिक और टाइम स्पेसिफिक। तो फिर लोगों को विश्वास आ जाता है कि कितना परिवर्तन अपने आप हुआ। ये उसी सेम रिवर का नीचे का हिस्सा है। जब ये नदी सूखी थी इसमें ये नहीं था, अभी तो ये नदी फ्लो करती है। ये ऊपर वाला फोटो भी है, नीचे वाला भी, दोनों 20 फरवरी के दिन के फोटो हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कहानी बताता है कि पानी का काम केवल धरती का चेहरा बदलता है ऐसा नहीं, आदमी का चेहरा भी बदलता है। पानी के काम से आदमी का चेहरा बदलता है। ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्या हुआ कि जब ये वाटर नोबेल प्राइज मिल रहा था तो बहुत लोगों ने कहा, अरे भाई राजेंद्र सिंह तो वाटर साइंटिस्ट नहीं है, ये तो साइंटिस्टों को मिलता है। तो फिर हमारे CS झा, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने फिर उसका पूरा एक अध्ययन किया और उसमें से ये जो एक मोटी रिपोर्ट दी और उसमें एक लाइन पढ़ने लायक है, immense increase vegetation is clearly region, this region। ये जो लाइन आई इससे सब चुप हो गए और वो अवार्ड मिल गया। तो बेसिकली अभी भी चलती साइंस की है, साइंस की रिपोर्ट के बिना वो गाड़ी आगे नहीं जाती। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम लोगों को साइंस का कैलकुलेशन और इक्वेशंस की रेस्पेक्ट किए बिना साइंस विद सेंस की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और उसकी जब हम रेस्पेक्ट करेंगे तो हमारा काम जल्दी आगे बढ़ेगा। मैंने कहा कि ये काम हमें गांव से शुरू करना चाहिए और फिर रिवर बेसिन लेवल पे जाना चाहिए। और जो हमारी ओल्ड स्ट्रक्चर हैं और नई स्ट्रक्चर हैं उन दोनों को जोड़ने की जरूरत है। और हमारे जो मोबिलाइजेशन है कम्युनिटी का, वो हमें भगवान के चारों तरफ करने की जरूरत है। भगवान मीन्स भूमि, गगन, स्पेस, एयर, वाटर, अग्नि। तो उसी के तरफ हम जाएंगे तो हमारा काम अच्छा होगा। जब हम इसको मोबिलाइजेशन करेंगे तो फिर हमारे लिए लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन पैटर्न आसान हो जाएगा। सर आप 40% पानी रिड्यूस कर सकते हैं एग्रीकल्चर में और उतनी ही पैदावार ले सकते हैं यदि हमारा पैटर्न ठीक से मिल जाए। हमें स्टॉप इरोजन एंड सिल्टिंग करने की जरूरत है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, ये हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। ही इज माई टीचर, ये मेरे गुरुजी हैं जो नंगे बैठे हैं ना, ये इन्होंने मुझे कहा कि राजेंद्र अब तू दवाई और पढ़ाई का काम बंद कर दे, अब तो तू धरती की पढ़ाई कर, धरती का इलाज कर। मुझे इन्होंने सिखा दिया। 2 दिन में मेरी इन्होंने 2 PhD कंप्लीट करवा दी।
और तब से मैं पानी का काम करने लगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप अपनी आत्मा से कुछ सच्चे मन से करने लगते हैं तो फिर ज्ञान आपके पास आ जाता है। फिर आपको कोई ना कोई सलाह देने वाला, कोई ना कोई आपके सामने आंखें खोलने वाला मिल जाता है। इसलिए हमें अपने इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से, इंडियन विजडम में भरोसा करके अभी भी भारत को पानीदार बनाने की गति हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, ये गांव पहले ऐसा था 1985 में, और हमारे सारे गांव के लड़के जयपुर में मजदूरी करने जाते थे। जब इस गांव में पानी आया तो सब्जी होने लगी, तो जिनकी गाड़ियों पे वो बेलदारी करने जाते थे उन्हीं को अब अपने गांव में रोजगार देते हैं। वो जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं अब हमारी सब्जियां दिल्ली की आजादपुर मंडी में पहुंचाती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज आया इस पानी के काम से। फूल होने लगे, बहुत तरह की चीजें वहां अपने आप होने लगी। हमने बस एक बात ध्यान रखा कि नेचर का रेस्पेक्ट किया, इसलिए जंगलों को नहीं काटने दिया, और खेती और जंगल दोनों साथ साथ लेकर आगे बढ़े। उसका परिणाम ये है, मैं बस आपको एक इम्पैक्ट स्टडी आपको जल्दी से दिखा देता हूं। देखो, जब हमने काम शुरू किया था तब हमारी पूरी अरावली में माइनिंग थी, डोलामाइट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन माइनिंग। और माइनिंग के कारण टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाता था। तो जो क्लाउड्स आते थे वो धरती से ऊपर उठ के आगे निकल जाते थे। हमारा पूरा इलाका रेन शैडो रीजन था। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत मदद की। उस जमाने में ग्रेट ऑनेस्ट चीफ जस्टिस थे, जस्टिस वेंकटचलैया साहब। उन्होंने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की माइंस अरावली में बंद कर दी। उसका परिणाम ये हुआ कि 7 मई 1992 को एक नया कानून बना, और उस कानून ने पूरी अरावली को प्रोटेक्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया। जब वो माइनिंग थी तब सूरज की लाल गर्मी टेम्परेचर बढ़ा देती थी, और हमारे यहाँ उस जमाने में महिलाएं गीत गाती थी। बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां मैं नहीं जानती। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी मुझसे रूठ कर दिल्ली चले गए। अब मुझे डर है कि मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। हमने क्या किया, हम आपको ये बता दें कि ये जो लाल गर्मी होती है, ये लाल गर्मी जब समुद्र पे पड़ती है तो समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट करके H2O में, क्लाउड्स में बदल देती है। और ये जो क्लाउड्स है इसको मैंने नीली गर्मी कहा है, सिंपल भाषा में हमारे लोकल लोगों को समझ में आ जाए। ये जो नीली गर्मी है ये हमेशा हरी गर्मी की तरफ जाती है जहां ग्रीनरी होती है। क्यों जाती है उस तरफ? क्योंकि उसमें भी हीट के कारण ट्रांसएवोपरेशन होता है और प्रेशर वहां कम होता है। तो ये जो क्लाउड्स हैं ये उस तरफ मूव करते हैं, और जब ये नीली गर्मी हरी गर्मी से मिलती है तो सर ये दोनों एक साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं, और उसको हम रेन कहते हैं। ये रेन है। अब ये रेन आई तो एक आर्टिफिशियल हीट और ज्यादा इंक्रीज हो गई हमारे इलाके में, क्योंकि बैरन लैंड थी। तो हमने बहुत धीरज रखा अशोक जी, क्योंकि देखो आप हिस्ट्री तो जल्दी बदल सकते हैं
बट ये जो पानी का काम है ना, ये जियोग्राफी चेंज करने का काम है। इसमें थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है, धीरज, ये एकदम से नहीं हो सकता। तो हमने इस पूरे इलाके में, ये जो हमारा रेड हीट के नीचे, एरो के नीचे, हमने वाटर बॉडीज बनाई। अब वाटर बॉडी बनने से तो बारिश नहीं आएगी, वाटर बॉडी थोड़ी बारिश को बुलाएंगी। तो हमारे यहां जो बारिश थी, वो बारिश यहां, ये जो हरी जगह है यहां पे होती थी, इसको हमने डाइवर्ट कर लिया अपनी वाटर बॉडीज में। जब ये हमारी वाटर बॉडीज में डाइवर्ट हो गया तो ये वाटर बॉडीज पेरेनियल हो गई, और फिर यहां खेती होने लगी और थोड़ी हरियाली बढ़ गई। मैं यहां रुक के आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरे गांव के लोग कैसे बोलते हैं इस बात को। मेरे गांव के लोग कहते हैं कि भाई साहब, धरती को बुखार चढ़ गया है और मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, अब बादल कब आएंगे कब बरसेंगे कुछ पता नहीं चलता। तो मैंने उनसे पूछा फिर क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने बुखार का इलाज करते हैं, ऐसे ही धरती के बुखार का इलाज करना होगा। पहले धरती के ऊपर पानी की पट्टी रखनी होगी, मिट्टी में नमी आएगी तो हरियाली आएगी, और ये जो हरियाली है ये धरती के बुखार का पैरासीटामोल है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करेगा। तो हमने वो गांव के सिद्धांत को मान लिया, और मान के फिर देखिए क्या हुआ। ये जो पेरेनियल वाटर बॉडीज हुई, इनमें से माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन, ह्यूमिडिटी बढ़ी, और ये जो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन है, इस माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन ने मैक्रो क्लाउड्स को बुलाया। ये दोनों मिल गए। अब जब ये दोनों मिल गए तो हमारे यहां वर्षा होने लगी। अब इसका इंपैक्ट देख लीजिए क्या हुआ। रेड हीट गायब हो गई, केवल 4 तरह की हीट है। रेड हीट सूरज से आती है, तब उसमें कोई गैस वैस नहीं होती। ब्लू हीट समुद्र के ऊपर पानी को एवोपरेट करके, डिसैलिनेट करके ब्लू हीट में चेंज हो जाती है। जंगलों में ट्रांस एवोपरेट करके ग्रीन हीट में बदल जाती है। ब्लू हीट और ग्रीन हीट मिलकर बारिश करती हैं, और जब ये बारिश होती है तो मिट्टी में पानी आने के बाद मिट्टी के जो सीड्स हैं वो रिजुनेट होने लगते हैं, हरियाली आने लगती है, और फिर जो रेड हीट है, अल्ट्रा रेड हीट है, वो गायब हो जाती है। और उसको गायब करने का ये चित्र आपको बिल्कुल सरलता से समझ में आएगा कि इसमें से जो बड़ी हीट है, जब ये क्लाउड्स होते हैं तो ऊपर निकल जाती है, धरती को जितनी हीट चाहिए उतनी नीचे जाती है, और कुओं में पानी आने के कारण खेती होने लगी, हरियाली आ गई। तो एक तरह से रिवर्स माइग्रेशन ने एक रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट की, जिसको हमने क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन कहा। अशोक भाई, मैं ये बात 2009 से राजेंद्र पचौरी जी को कह रहा था कि देखो, तुम इंडियन हो, साइंटिस्ट हो, बड़े साइंटिस्ट हो, लेकिन इंडियन बड़ा साइंटिस्ट वाटर को लाइफ मानता है, और जो एयर है वो सेकेंडरी है। जब लाइफ शुरू होती है तब एयर की जरूरत होती है, और तुम क्लाइमेट चेंज में एयर को प्रायोरिटी पर लेके आ रहे हो। तो पता है, वो बहुत ऑनेस्टी से उसने कहा कि राजन भाई देखो, मैं तो जो साइंस मैंने पढ़ी है, कैलकुलेटिव साइंस, उसी के आधार पे काम कर रहा हूं। मैं तुम्हारी बात को ना
मान सकता हूं और ना मैं कैंसिल कर सकता हूं। तुम जो कह रहे हो वो भी ठीक है, पर मैं उस पर काम नहीं कर सकता। मैंने कितनी बार जब वो जीवित थे उनसे मिलके कहा कि राजेंद्र भाई थोड़ा मदद करो, तुम वैज्ञानिक हो, क्योंकि जब कोई बड़ा सिद्धांत स्थापित करना होता है तो ये जो बड़े वैज्ञानिक लोग हैं वो लिखते हैं तब आगे गाड़ी चलती है, वो नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। भाई जी मैंने बोस्टन में, टर्की में, कहां कहां यूएन के सैकड़ों मंच पे बोला और प्रेजेंटेशन दिया ये, लेकिन जब तक एक प्रोफेसर ने इसको उनकी भाषा में नहीं प्रेजेंट किया तब तक यूएन ने मुझे नहीं सुना, ना माना। आप समझ गए ना मेरी लिमिटेशन। और फिर तो 2015 आ गया, 2015 में फिर तो अवार्ड भी मिल गया, फिर तो लोग सुनने लगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो आपका प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसके पीछे बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। कैच द रेन, आपको पता है मुझे 1996 में 96 में क्लाउड कैचर कहते थे। अब मुझे तो क्लाउड कैचर का मतलब भी जब ठीक से पता नहीं था, सच्ची पता नहीं था, लेकिन दुनिया के लोग क्लाउड कैचर कहते थे। तो जो लोग काम करने वाले होते हैं उनकी अपनी एक नजरिया होता है और उस नजरिए से वो ऑनेस्टी से देखते हैं और बोलते हैं। मैंने जो भी कुछ बोला वो विद ऑनेस्टी बोला, ईमानदारी से बोला कि भाई आपका ये जो कैच द रेन्स है ये इस देश को आगे तक लेके जा सकता है कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट में। हम एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट की ड्राइव लें और हम आगे बढ़ें। मैं आपको ये बात क्यों कहना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि आखिर 2015 में वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर हमारा भारतीय स्लोगन यूएन ने भी स्वीकार कर लिया पेरिस में और एसडीजी में भी, दोनों में हम लोग बहुत इसके लिए बहुत दिनों से बोल रहे थे लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में और एसडीजी में ये जो आपका राजस्थान का छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वो ग्लोबल पॉलिसी को चेंज कराने में सक्सेस हो सका। इसलिए मैं आपका ये जो कैच द रेन, वेयर द फॉल एंड व्हेन द फॉल, इसको मैं उस तरीके से दूर तक जाने वाला एक रास्ता देखता हूं, दूर लेके जाने वाला, लंबा रास्ते पे चलाने वाला। इसलिए मैं आपको एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। किसी के कुछ सवाल हो तो पूछ लें, बाकी मैं अपनी बात अभी खत्म करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद राज सिंह जी। जो आप बोले हम उसी रास्ते से चल रहे हैं एक्चुअली। हमारा एक्चुअली थॉट प्रोसेस भी मिल चुका है। आपने जो बोला कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर प्लानिंग वही है कैच द रेन का, क्योंकि ये बात में तो एक्चुअली वो आपका मैंने जो स्टेटमेंट दिया कैच द रेन का वही है कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, उसका मूल मंत्र वही है। पर उनका जो डेफिनेशन हमने दिया था वो कि क्या नडजिंग, बिकॉज हमको सबको धक्का नहीं दे सकते। नडज मतलब उसको थोड़ा प्रोत्साहित करें, नडजिंग स्टेक होल्डर्स टू क्रिएट अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए, विच इज अप्रोप्रिएट टू द एरिया अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस एज वेल एज द सॉइल कंडीशंस। जैसे आपने बताया क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल कंडीशंस के मुताबिक अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना before the onset of monsoon with active participation of people। इतना ही हमारा तो जो कैच द रेन के डेफिनेशन में इतना ही बोल रहा हूँ। कैच द रेन is to nudge stakeholders to create appropriate rainwater harvesting structures appropriate to soil conditions and climatic conditions with active people's participation before the onset of monsoon। तो आपने जितने बोला ना ये सब इसमें समाया हुआ है। एंड
एग्जैक्टली हमारा भी फिलॉसफी है डिसेंट्रलाइज स्टोरिंग। बड़े बड़े डैम्स के हम भी खिलाफ है, क्योंकि बड़े बड़े डैम्स बनने में बहुत पैसा लगता है, टाइम लगता है, एनवायरमेंटल हज़ार्ड होता है। वही जैसे आपने बताया, ये पूरा निर्माण होने के बाद पता चलता है कि उसका आधा डिसिल्टिंग में चला गया, बहुत लोगों का नुकसान हो गया, और जो हम सोच के आगे निकल पड़े थे वो तो होता नहीं है। तो सबसे अच्छी तरीका है कि वो डिसेंट्रलाइज, अपने घर में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी खेत में, और गांव का पानी खेत में, वही हम चल रहे। एंड आपने तो कई चीजें इतने सरल भाषा में बताया कि देखो, दुनिया सब, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं कि क्या कुछ साइंटिफिक टर्म्स बताते हैं, वो लोग प्रॉब्लम यूएन में एक्सेप्ट होता है, बट आम जनता तो आपकी भाषा एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसको समझ में आता है कि आप नीला क्लाउड के बारे में, रेड क्लाउड के बारे में बता, देखो कैसे मिलन होता है और उसकी वजह से टेम्परेचर कैसे कम हो जाते हैं, और जैसे आप धरती का बुखार वो कम कर लिया, वो जैसे क्रॉसिंग दे दिया, वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये वाटर लिटरेसी में, जैसे आपने बताया, मैं ये भी बता दूंगा, 3-4 पॉइंट आपने उसमें जोर दिया। उसमें एक तो डिसेंट्रलाइज, तो हम तो डिसेंट्रलाइज के बारे में काफी जोर दे रहे हैं। दूसरा, यूथ को इन्वॉल्व करना है। हम ये कार्यक्रम दिसंबर में जब अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन शुरू किया, हमने नेहरू युवक केंद्र से जुड़ गया, उनके पास बहुत सारे युवक है, नेहरू युवक केंद्र। तो मैं आपको बहुत गर्व से कह सकता हूँ, पिछले 3 महीनों में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग इस कैंपेन में जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम बोला कि देखो, जो नेहरू युवक केंद्र के लोग, उनको तो मैं हमेशा उनको भी बोलता हूँ पानी की तरह वो युवा शक्ति, हमें हमेशा बोलता है कि जल शक्ति और युवा शक्ति एक जैसा है। अगर हम उसको ठीक से गाइड करेंगे तो बहुत काम आएगा, वो सिंचाई के काम आएंगे, पीने के लिए काम आएगा। अगर हम उसको खुला छोड़ दे, तबाही मचा के चला जाता है। तो यूथ पावर भी ऐसा है कि उनको गाइड करेंगे तो नेशन बिल्डिंग में काम आ जाएंगे, और उसको ऐसे छोड़ दिया तो पूरा अंधाधुंधी ध्वंस करते जाएंगे। तो इसलिए इसी रूप आइडिया से नेहरू युवक केंद्र से हम जुड़ गए थे। एंड पिछले 3 महीनों में वो लोग इतना अवेयरनेस जनाया कि तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को मिला के अब चल रहा है। तो एक तो यूथ का आ गया, दूसरा हम ट्रेडिशन की बात कर रहे थे, हम भी ट्रेडिशनल वाटर बॉडी रिवाइव करने के लिए काम कर रहे थे, एंड उनको बोला हुआ। एंड तीसरा एक पॉइंट आपने एक साइंटिफिक प्लानिंग क्या बताया था हमारा, मैंने कहा साइंस विद सेंस। हाँ, साइंस विद सेंस, वही। क्योंकि हमने बोला कि देखो, ये पहले हमको होना चाहिए, हमारे पास चीजें है क्या, वो तो हमको पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि पहले 2 महीने, मतलब मार्च से अप्रैल मई 15 तक आप एक अपने पूरे इलाके के पूरे वाटर बॉडीज का मैपिंग करें, जिसका उसका चिन्हित करे, और उसका हिसाब रखे कि कौन सा बावी कहाँ पे है, एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद उसी से हम साइंटिफिक डेटा बेस बनाए एंड प्लान करेंगे, ये हम कर रहे हैं। और दूसरा, हमने पिछले साल में एक सही फसल करके कैंपेन शुरू किया था, आपको पता होगा, पता नहीं, नेशनल वाटर मिशन ने पिछले साल एक सही फसल करके कैंपेन शुरू किया था। वो डिमांड साइड मैनेजमेंट है, जो पानी कम लेते हैं और जो पानी एफिशिएंटली यूज करते हैं, वही है सही फसल। वो सही फसल हम पंजाब में शुरू किया था, ये अमृतसर में मीटिंग किया था, तकरीबन 1000 फार्मर्स को बिठा के उनको बोला गया कि आप पंजाब में जो आप धान उगा रहे हैं, वो इस क्लाइमेट के लिए भी ठीक नहीं है, और आपके सॉइल के लिए भी ठीक नहीं है, और आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको वाटर फुटप्रिंट के बारे में बताया। देखो, हमारे लोग किसान भाई 3000 लीटर से 1 किलो धान उगाते हैं, जब अमेरिका के लोग किसान 750 लीटर्स में वही क्वांटिटी धान उगाते हैं। तो वाटर यूज एफिशिएंसी भी हमारा कम है, और इनएफिशिएंटली यूज करते हैं, और वहाँ के जो फ्री पानी और फ्री पावर की वजह से वाटर का रेस्पेक्ट भी कम हो गया। तो ये पॉइंट आपने बताया, रेस्पेक्ट की बात बहुत सही है, क्योंकि ये जब हमको चीजें मुफ्त में जब मिलते हैं ना, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं होते, तो वैल्यू नहीं होते। तो वहां पे पूरा मुफ्त में पानी और बिजली दे रहे, तो किसान वेस्ट करते गया। और अपने हिंदी में भी ये मुहावरा है क्या, चीजें को फालतू खर्चा करते हैं तो बोलते हैं कि हम पानी की तरह बहा देते हैं। ऐसे मुहावर भी आ गया, क्योंकि हम पानी को रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। तो इसलिए
हम पानी को रेस्पेक्ट वापस लाने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिजुवेनेट एंड रेस्पेक्ट। पानी का जो रेस्पेक्ट की बात हम हर वाटर टॉक में कर रहे हैं। हर वाटर का रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए हम अभी आपने जैसे हमने सजेस्ट किया, वी आर गोइंग फॉर वाटर लिटरेसी। स्कूल्स में स्कूल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और उन्नत भारत अभियान के साथ मिलके हम पानी के बारे में लोग बच्चों को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो काफी बार डिस्कशन भी हो चुका है और कैरिकुलम में आने वाला है। ये बच्चों को पानी के सरल भाषा में पानी के बारे में बताने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे तरह से जो आपको बताना चाहता था। और मैं अभी ये फ्लोर ओपन रखता हूँ कि बहुत सारे लोग आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, इसलिए आई लीव द फ्लोर ओपन। Once again, thanks for the wonderful talk and inspirational talk. Anupama, please go ahead with your questions. अशोक सर, एंड सबसे पहले सर राजेंद्र सिंह सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। और हर एक शब्द जो अशोक सर ने कहा आपके लिए, आपकी टॉक के बारे में, मैं उस हर शब्द को दोबारा रिपीट करना चाहूंगी। आपने इतनी सरलता से, इतनी सुंदरता से अपने शब्दों को कहा है कि मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। और अगर आप चाहें मैं आपको दो एक लाइनें इसमें से पढ़ के भी बता देती हूँ। सर, नाइस सेशन सर, नमस्कार, thanks for a beautiful concept and so easy way to understand, and there are many more coming up. Okay, so thank you so much for such a wonderful talk which you have delivered. और एक भी मिनट के लिए ऐसा नहीं था कि हम सोच रहे हैं कि कुछ और कर लेते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट क्या बताने वाले हैं एक बारी वो भी सुन लें, फिर नेक्स्ट क्या बताने वाले हैं वो भी सुन लें। So without further ado, sir, there are people जो बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, and I'll also take certain questions जो मेरे पास chat box में आए हैं। पर अभी we are opening for the question answer session officially, and all those who are joining us for the very first time, on your computer screen you have this chat window where you have an option of raising your hand. So you can raise your hand and my team will announce your name. You can unmute, you'll be unmuted, and then you can introduce yourself and put forward your query. For all those जो हमें Facebook से ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज आप वहाँ पोस्ट में लिखिए। और जितने क्वेश्चंस हम ले पाए, हम 5 बजे तक इस प्रोग्राम को चलाते हैं, जितने बजे तक हम इस क्वेश्चंस को ले पाए हम जरूर लेंगे। So now we are officially open for the question answer session. Please raise your hand and put forward your queries. I request Mr. Shaurad Gandhi, you may please ask your query. Hi, my name is Shaurad and I am an independent consultant. My question is, what are the steps that should be taken to instill the values of water consciousness among children? Yes. ये जो पानी की कीमत है, पानी की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसको बाजारू कीमत के रूप में रखना नैतिक और न्यायपूर्ण नहीं होता, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पानी खरीद के नहीं पी सकते। इसलिए जब आप बाजारू वैल्यू की कल्पना करते हैं तो वो थोड़ी अनजस्टिस एंड अनइथिक की तरफ हमें लेके जाता है। मेरा कहना यह है कि हाँ, पानी की कीमत होती है, पानी की कीमत होनी चाहिए। पानी बहुत कीमती है, पानी हमारा प्राण है, लेकिन इसकी कीमत कुछ ऐसे करें जो कीमत चुका के पी सकते हैं, वो चुका के पिए। जो चुका के नहीं पी सकते उनके लिए भी पानी मिले। इसलिए मैं पानी की कीमत से कभी मना नहीं करता, बट पानी की कीमत का जो जस्टिस और पानी की जो इथिक है उसको कंसिडर किए बिना हम आगे मूव करेंगे तो हम भारत, जो पूरी दुनिया का गुरु था, ग्लोबल टीचर था पानी के बारे में, फिर वो सेंस हमारे बारे में नहीं रहेगी। इसलिए हमें अपनी सेंस को रेस्पेक्टफुली साथ रखना चाहिए।
हमारे हेरिटेज को हमेशा देखना चाहिए। जब हम कई बार अपने हेरिटेज को समझे बिना बहुत जल्दी में बाजारू मार्केटाइज, कमर्शलाइज, प्राइवेटाइज, इन सब शब्दों के घेरे में पड़ जाते हैं, तब फिर हम लोग वाटर सिक्योरिटी की बात नहीं करते, फिर हम केवल और केवल वाटर मार्केट की बात करते हैं। जबकि भारत में पानी जो है वो सिक्योरिटी का काम है, शुभ का। पानी लाभ का नहीं होता था, वो तो अब होने लगा। वाटर सिक्योरिटी, इसलिए हमें सिक्योरिटी की तरफ मूव करना चाहिए, प्रॉफिट, वाटर प्रॉफिट की तरफ नहीं। जब आप वाटर प्रॉफिट में मूव करने लगते हैं, तब पानी पर बाजार का एनक्रोचमेंट, पॉल्यूशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। हम भारतीयों को पानी का पोषण का काम करना चाहिए, शोषण का नहीं। और वो हो सकता है। देखो, मेरे जैसा मामूली आदमी यदि 1200 गांव में लोगों की हिम्मत से, लोगों के डिसीजन से उनके पानी का संकट दूर कर सकता है, तो हमारी सरकार पूरे देश का संकट मिटा सकती है। हमें बस पानी का नजरिया साफ रखने की जरूरत है। थैंक यू। Now I और जब मैं request नजरिया कहता हूं तो वाटर सिक्योरिटी की बात करता हूं। जल को ना भाई साहब अशोक जी, पुण्य का काम माना जाता है, पुण्य का। हाँ, वही वही। तो इसलिए हम उसी शब्द को, पुराने को लेके आगे बढ़ेंगे तो हम इस मॉडर्न क्राइसिस के लोकल और इंडिजिनस सॉल्यूशन दे सकेंगे। ट्रेडिशनल सोल्यूशन। Now I request Mr. Ayub Jamal Khan Pathan. You may please ask your query. मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। पठान जी बोलिए। No problem. I think maybe some connectivity issue from his side, but there are other questions which I'll take up. He has okay. He has sent it in the chat box also. He is wanting to know about type of recharge. How can we recharge? How can we focus on recharging our water bodies and all? So basically, yeah, जी. यस, टुडे हमारी जो धरती के पेट के पुनर्भरण का काम है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। रिचार्जिंग ऑफ द अंडरग्राउंड एक्यूफर्स क्यों होनी चाहिए? कि जब हम रिचार्जिंग करते हैं तो एवोपरेशन लॉस को कंट्रोल कर लेते हैं, और जो भी हम डिपॉजिट करते हैं वो पॉजिटिवली हमारे वाटर बैंक को प्रॉस्परस बनाता है। इसलिए इस वक्त इंडिया को रिचार्ज पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। रिचार्ज सिंपल है। जहां तुम्हें कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर मिल जाते हैं, उनके ऊपर आप यदि पानी रोक देंगे तो वो सारा नेचुरली नीचे चला जाएगा। तो आपको हमारे जो कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं उनका पता कैसे लगाएंगे? उनका पता लगाने के लिए आप उस इलाके के जो सेक्शन है धरती का कट, उसको देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ कैसे फ्रैक्चर्स हैं, यहाँ कैसे एक्यूफर्स हैं, और वो जो ट्रेंड है एक्यूफर्स का, उसको ध्यान में रख के आप उसके ऊपर पानी रोकेंगे
तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको केवल और केवल हमारे जो अंडरग्राउंड एक्यूफर है रिचार्ज होके वाटर लेवल को ऊपर ले आएंगे। दूसरा तरीका ये है, जिसको मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, कि पानी को एक जगह करो और आर्टिफिशियल फ्रैक्चर करके रिचार्ज करो। देखो भाई, मैं इसका पक्षधर नहीं, मैं इसका पक्षधर हूं कि हम अपनी जियो हाइड्रोलॉजी को जरा समझ लें और वहां की मिट्टी को देख लें कि वहां मिट्टी में कितना पानी मिट्टी पकड़ सकती है। वो जो काम है वो सस्टेनेबल और सनातन है। इसलिए मैं उस सस्टेनेबिलिटी और सनातन काम की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। बस अभी इतना ही। I request Mr. Rajesh Gupta, you may please ask your query. डॉक्टर साहब, इसमें जो ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन हो रहा है, इसको रोकने का कोई उपाय? हाँ, इसको रोकने का उपाय बहुत सरल है। ये जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसको किसी भी कीमत पर अंडरग्राउंड एक्यूफर में नहीं जाने देना चाहिए। भाई जी, यदि वो अंडरग्राउंड एक्यूफर में जाएगा तो उसको आप अपनी लाइफ में कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। वो जघन्य अपराध है। हमें उस जघन्य अपराध से बचने के लिए धरती में क्लीन नेचुरल वाटर को ही जाने देने का इंतजाम करना चाहिए। कंटेमिनेटेड वाटर कभी ना जाने दें। यदि कंटेमिनेटेड वाटर गया तो हमारे पास ना कोई साइंस है ना टेक्नोलॉजी है उसको ठीक करने की। ठीक है भाई। सर, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए एक रिक्वेस्ट आया है। दिस इज टिंकू शर्मा, जो लिख रहे हैं कि आई एम एसोसिएटेड विद जल जीवन मिशन एज इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी, सो आई वांट टू आस्क सम सॉल्यूशन फॉर कन्विंसिंग रूरल पीपल टू टेक टैप कनेक्शन। तो बेसिकली जल जीवन मिशन के लिए रूरल लोगों से जुड़ने के लिए आपसे थोड़े कुछ पॉइंट्स लेना चाह रहे हैं कि किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो टैप कनेक्शन के लिए आगे आए और अपने घरों में टैप कनेक्शन करवाएं। देखिए, आपको ग्रामीणों को इस जल संरक्षण के काम में जोड़ना है तो सबसे पहला काम होता है उनके साथ संवाद करना। संवाद को रियलाइजेशन के लेवल तक ले जाना। फिर वो जो आप बोल रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये सबसे डिफिकल्ट काम है। यदि लोगों को रियलाइज हो गया कि आप जो बोल रहे हैं वो करना संभव है, तो हमारी रूरल कम्युनिटी फिर जल्दी से इस काम में जुट जाएगी। अच्छा, उसको विश्वास कैसे होता है? उसको विश्वास होता है कि ये जो सामने वाला बोल रहा है ये केवल बात कर रहा है कि कुछ इसने जीवन में काम भी किया है। यदि सामने वाले ने जीवन में कुछ काम किया है तो कम्युनिटी आपको ज्वाइन करेगी, आप पर कॉन्फिडेंस भी करेगी और आपकी बात को रियलाइज भी करेगी। और यदि आप केवल बौद्धिक विलास कर रहे हैं तो वो आपको एक झटके में नकार देगी। इसलिए भाई, मेरा इतना ही कहना है कि जितना ज्ञान तुम्हारे पास है उस ज्ञान से कुछ अच्छा काम शुरू कर दो, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे और आपका काम आगे बढ़ता जाएगा। यही काम करने का तरीका है। सबसे अच्छा
एंट्री पॉइंट आपके एक्शन के लिए ये है कि जितना आप जानते हैं और जितना आपको कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस के साथ मूव करें, फिर आगे लोग जुड़ेंगे। केवल बातचीत में भारत के लोग नहीं जुड़ते। बिल्कुल। और अगला सवाल अशोक सर आपके लिए। आपने ये बहुत सही कहा, क्योंकि अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल और सस्टेनेबल होना चाहिए तो एक तो क्रेडिबिलिटी होना चाहिए और लोगों को आप पर विश्वास होना चाहिए। मैं एक थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैं उदाहरण दूंगा। जब मैं पुराना 20 साल पहले कलेक्टर था एक जिला में निजामाबाद में, तो हमने एक अभियान चलाया था। उस समय ऐसे ऐसे अभियान चलाते रहते। तो एक तो था कि वहाँ पे टॉयलेट बनाने का चांस किया था हमने। 6 महीने में 1.5 लाख पक्का टॉयलेट बनाया था। 1.5 लाख पक्का टॉयलेट। और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि मैंने उससे पहले 100 स्कूलों में टॉयलेट्स बनाए, और उसके साथ ही साथ जैसे आपने बताया हैबिटेशन ड्रिंकिंग वाटर कमिटीज बनाए। तो उनका उनकी पूरी जिम्मेदारी उनके उस गांव के महिलाओं को दे दिया कि बोलो को आप देखो इसमें पानी का व्यवस्था ठीक हो और उसका शुद्धिकरण हो। तो ये 6 महीने में उन्होंने देखा कि ये जो बोल रहे हैं, जो भी बहुत सारे कलेक्टर बोलते होंगे ना, उस समय मैं भी कलेक्टर के लिए उनके लिए सामने कलेक्टर था बोल रहे, तो उनको पता चला कि देखो ये तो उसमें कुछ दम है। तो उसने मेरे साथ जुड़ गया। और जब हम ये स्कूल का टॉयलेट्स और हैबिटेशन कमेटी का 1 साल अच्छी तरह से वो उसका फायदा उन्होंने देखा, तो फिर 1.5 लाख टॉयलेट बनाने का काम 6 महीने में जल्दी हो जाएगा। क्योंकि उनको समझ में आया कि देखो ये बोलने वाला थोड़ा उनका इरादा ठीक है। तो आप जैसे बोल रहे इरादा ठीक होना चाहिए और पब्लिक को आप पर विश्वास होना चाहिए, देन काम आसान हो जाएंगे। जैसे आपने बताया ना, आपने वो करके दिखाया और जो लोगों को आप पर विश्वास आया था, इसलिए आप जो भी बोलते हो उसको करने के लिए वो तैयार होकर आगे बढ़ गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, टारगेट पे चलते हैं। टारगेट पूरा करने के लिए चलेंगे तो खाना पूरी हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। वी शुड इन्वॉल्व आवरसेल्व्स, देन गेट द पीपल इन्वॉल्व एंड देन टेक इट टुगेदर, देन इट इज सस्टेनेबल। नहीं तो आपके ट्रांसफर होते होते वो भी खत्म हो जाते हैं। तो आई फील दैट involvement of people with total dedication and making them accept you and making them have faith in you is very important for making a sustainable project. Okay, that's from my point of view. Go ahead. Next question. Sir, and I think एक और sir, before I put forward another question to Dr. Rajan Singh ji, sir एक query आया है and I think you'll be the right person to answer it. सोशल मोबिलाइजेशन के लिए कि क्या कोई मॉड्यूल है जो नेशनल वाटर मिशन ने साझा किया है कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल्स के लिए? Actually, अच्छा सवाल आपने किया। We have actually if you look at our website, nwm.gov.in, that is our website. Easy to remember. NWM is National Water Mission. .gov.in is the government website. So nwm.gov.in mein we have kept a separate section itself for catch the rain and all the IEC materials. We had actually hired a very, very robust team, and all regional languages maybe we have created lot of materials, IEC materials for social media tweets के लिए, electronic posters के लिए, नुक्कड़ नाटक के लिए, then even for debate competition के लिए topics, quiz competition के लिए quizzes, ये सब लगा हुआ है। हम काफी क्राउड सोर्सिंग करके लोगों से भी लेके we have made that bank. So there's a bank of IEC materials with us. आप देख लीजिए, आप जिस भाषा में आपको चाहिए you can open up that folder. तेलुगु में चाहिए तो तेलुगु में मिल सकते हैं, मलयालम में चाहिए तो मलयालम में मिल सकते हैं। It's available with us. So आप उसमें जाके आपका जो भी requirement है देख सकते हैं। And I also request you, if you have any suggestions, if we have any good modules, please send it to us. We will also put it down so that my job is actually not to say that what I say is correct, but I would like to get people's involvement, information from people, their contribution.
we'll keep it in all the platforms so that everybody can use it. So if you have any such good slogans, quotations, wall writings के लिए materials, आप हमको भेज दीजिए. We will also put it up in the appropriate boxes, in the appropriate languages, in appropriate folders for wall writing, for slogan competition, for like that. And there are a lot of videos also available, so please use that. And I hope that this material हम crowdsource करके we can disseminate it to a lot of people and make a lot of social mobilization. Last point, you please contact your Nehru Yuva Kendra people. हर जिला के नेहरू युवक के लोगों से हम अपना 2-3 बार ट्रेनिंग भी किया. पिछले हफ्ते भी हमने 400 और 700 डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर से बात की थी, ट्रेनिंग की थी, उसको दिए थे. तो ये they also will join you. They will also help you in getting these materials and social mobilization. They have, as I said, अब तक 2.5 crore लोगों से they have mobilized, they have involved school students, they have involved celebrities of the district, they are involved collectors, they are involved Panchayat Raj institution, they are involved sarpanchs, they are involved MLAs, they have involved school children, they have college children, they are involved youth, they are involved women. सबको इन्वॉल्व करके वो भी आगे बढ़ रहा है. तो आपको अगर इस अभियान में ज्वाइन करना है तो you can also join with the Nehru Yuva Kendra people and be a part of it. Thank you. आई होप वाकिफ खान जी आपको अपनी क्वेरी का जवाब मिल गया है, और अगर फिर भी आप उसको वेबसाइट पे लोकेट ना कर पाए तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू काइंड ऑफ राइट टू अस एंड विल बी एबल टू असिस्ट यू. सर एक और सवाल है जो श्याम जी लिख रहे हैं, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ एजुकेशन इन empowering people to join such initiatives? लोगों को इस तरह के इनिशिएटिव आगे लेके जाने के लिए एम्पावरिंग करना एक बहुत सिंपल तरीका है. जहां भी देश में ये कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर रिजुविनेशन के काम हुए, वहां कभी कभी कुछ लोगों को एक्सपोजर कराना चाहिए, ले जाके दिखाना चाहिए कि वहां की कम्युनिटी ने कैसे किए, और कम्युनिटी ने जब वो काम कर लिया तो वो कैसे एम्पावर हो गए. क्या होता है अनुपमा, हमारा जो देश है वो बातचीत पर कम यकीन करता है. भाई ये बंद हो गया. पारस, नहीं सर, हम आपको सुन पा रहे हैं. अच्छा सुन पा रहे हैं? जी Good. सर. वेरी गुड. तो मैं ये कह रहा था कि यदि हम अपनी कम्युनिटी को और अपनी सिविल सोसाइटी को, पीपल्स को, तो जहां कम्युनिटी ने कुछ अच्छे काम किए हैं, संस्था ने या प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि अभी तो कट हो गया. Sir, I request you to kindly switch off the video and maybe we can hear your voice. I think some issues with the internet. आप वीडियो बंद करके बोल सकते हैं. राजेंद्र सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से हम सर की आवाज
नहीं सुन पा रहे हैं और उनको नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। वेट करेंगे। अशोक सर, मैं चाहूंगी तब तक जब तक हम दोबारा से राजेंद्र सिंह सर को ज्वाइन करवा पाए या कनेक्ट करवा पाए, आप तब तक थोड़ा हमें कैच द रेन कैंपेन के बारे में जो लेटेस्ट प्रोग्रेस अभी चल रहा है उस पर कुछ थोड़ा इफ यू कैन हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स। ठीक है, बेसिकली वी विल वेट फॉर राजेश सिंह जी। उनका जो whatever he has said, that's exactly what we are trying to follow in the Catch the Rain campaign. It is basically a campaign for decentralized storage of water. We are looking at Catch the Rain as a supply side management and trying to store as much water as possible in your own compound so that the flow of water to the low-lying areas and flooding and wasting is avoided. So इसमें we have found that there are 2 or 3 major advantages. एक तो definitely water table ऊपर हो जाएंगे, and because of the water table water जल का स्तर ऊपर आने की वजह से your vegetation will also grow up, your soil will become lively, organic, and then all the जो नमी आती है ना उसके साथ साथ all the rainworm, all the small insects सब आ जाएंगे. So water, the soil become very lively, and the associated benefits are when the water table goes up, your power required for the motor will come down. Your the capacity of the motor for lifting water comes down, and the expenditure involved in lifting up the water comes down. Your vegetation increases. इसकी वजह से the water also will flow much lesser speed, because normally क्या होता है कि जैसे राजेंद्र सिंह जी ने बताया, when there is compaction the water flows very fast. तो हमको क्या करना है, रनिंग वाटर को स्लो करके उसको चलाना है, चलने वाले पानी को रोक के उसको नीचे सिंक कराना है. तो दिस इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन एंड कॉन्क्रीटाइजेशन. इनकी दोनों की वजह से water in the urban area is going out very fast and going to the low-lying areas. So the unintended benefit of this water saving is reduction of urban flooding. हमने देखा कि पिछले 10 साल के अंदर कई शहरों में we have seen urban flooding. State cities like Punjab, like Hyderabad and all, you should never hear of urban flooding. Now we are having regular urban flooding. से बॉम्बे में होता है, partly because of the increased intensity of the rainfall, but mainly because of the urbanization and high compaction, which reduces the permeability of water down. So our intention this time is to see that water आप अपने एरिया में स्टोर करने की कोशिश करें, तो the urban flooding also can be very much reduced, and the damages caused by the urban flooding can also be reduced. So this is one important aspect of it. We are planning one very important step is the opening of Jal Shakti Kendra. In every district, what we are planning is we will open something called as a Jal Shakti Kendra. It started off initially as a concept of a rain center, but then we have gone beyond it to the Jal Shakti Kendra. The idea is that there is no single agency in this district handling water. अच्छा राजेश सिंह जी, आप वापस आ गए, कनेक्शन मिल गया आपका? तो नो आप मिल गया, ठीक है. तो आप अनुपमा just go ahead with the question with Rajesh Singh. Okay, so sir, there is one more question. Thank you for joining back, sir. I'm sure there are some issues with the network today. So, but anyways, thank you so much. And there is a question, not question, rather people would somebody, Mr. Bhasin, he is wanting to know your views about the financial outlay. राजेंद्र सिंह जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर वीडियो ऑफ करके हम एक बार आपके साथ जुड़े. वीडियो ऑफ कर दो जी. थोड़ा बैंडविड्थ का इशू चल रहा है, तो आई थिंक यस. थैंक यू. मैं इतना ही कह रहा था कि ये जो इशू है इसको समाज का सेंस ऑफ ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस कायम करने के लिए उनको रियलाइजेशन कराने की जरूरत है.
रियलाइजेशन हो जाता है कि ये उनके लिए है, उनके कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए है, तो फिर वो इस तरह के में हाथ आ जाता। मेरा इतना ही कहना है कि हम इस पानी के काम को राज, समाज और संतों का साझा काम माने। राज, समाज, साइंटिस्ट सब लोग इस काम को जब अपना काम मानेंगे तब ये काम आसानी से आगे बढ़ सके। देखो, तुम जानती हो कि मेरे पास तो ना पैसा था और ना लोग थे, ना पहचान थी और ना मैं कोई अथॉरिटी था। वो जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आगे आके आप आकर Rajendra Singh ji, मैं sorry to उदाहरण बता interrupt. सकता हूँ। जी, यस, थोड़ा हम सुन नहीं पा रहे हैं, आई थिंक नेटवर्क इशू आ रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू हियर यू। अभी छोड़ दें। हेलो, हम चाहेंगे कि हाँ, हम चाहेंगे कि अगर 2 मिनट भी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं और हम आपको सुन पा रहे हैं, अपने एक क्लोजिव रिमार्क के साथ एक सबको अपील करते हुए कि सब हाँ, पार्टी के इस हाँ, कैंपेन में जुड़े हमारे साथ। हम इस प्रोग्राम को यहीं रोकना चाहेंगे। आप अनुपमा जी और अशोक जी इस सब अपना काम माने। आज का साइंटिस्ट रियलाइज करें कि भारत बेपानी ना हो। लोगों को ज्यादा दिन जिंदा रहना है, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा पानी के लिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ डॉक्टर अशोक, मैं कह रहा हूँ कि हमारे यंग जनरेशन को रियलाइजेशन और इंटरलाइजेशन कराना जरूरी है। पानी का काम उनके कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने का काम है। हम सब लोग इस ब्राइट फ्यूचर के काम में साथ जुड़ जाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम सब मिलकर इस काम को करें। कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर अशोक जी और अनुपमा जी, धन्यवाद, बधाई। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात की। एक्चुअली बहुत सारी चीजें आपने इतना सरलता से आपको हमको समझाया, हमारे लोगों को समझाया। आई एम श्योर दैट दिस विल बी ए वेरी वेरी मेजर इवेंट एंड इट इज नॉट दी लेंथ ऑफ टाइम दैट मैटर्स। आपने जो भी जो ना आयुर्वेद में बोलते हैं ना, कषाय के रूप में काफी कॉन्सेंट्रेटेड आपको बताया, तो बहुत बढ़िया। एंड अंडरस्टूड व्हाट योर व्यूज आर एंड आप भी हमारा तो फिलोसफी समझ गए। वी विल वर्क टुगेदर, वी विल डेफिनेटली सी दैट दिस विल बिकम ए जन आंदोलन एंड नीचे स्तर के लोगों को, एवरीबॉडी, हर एक लोगों व्यक्ति को जोड़ के एक कार्यक्रम हम विल मेक इट सक्सेसफुल। जैसे आपने बताया, ये बड़ा तकलीफ का इश्यू था। मैं पिछले साल जब मैंने शुरू किया था, अनुपमा नोज अबाउट इट, काफी मुश्किलों को झेलना पड़ा। एक गैसोलीन कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मुश्किलों को झेलना पड़ा, फिर भी हमारा इरादा पक्का था, हमारा तो जो मन में जो विश्वास ठीक था, इसलिए वो आके प्रधानमंत्री के दृष्टि में है, वो आके उसको एनकरेजमेंट लिया और आप जैसे लोगों का प्रोत्साहन मिल रहा है। वेरी हैप्पी टू सी दैट यू आर हियर। आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे, आप आपके मार्गदर्शन में हम चलेंगे।
धन्यवाद, आप हमारे इस सिल्वर जुबली टॉक में आप आए थे. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you. And I Thank also you, thank धन्यवाद. Anupama for thank you. Thank you. And Thank all you, the Ashok sir. participants. थैंक यू अशोक सर एंड थैंक यू राजेंद्र सिंह जी. हमेशा आपके टॉक्स को हमने आपके वीडियोस देखे, आपके जो भी आप मैसेजेस देते हैं वो हम पढ़ते हैं. अभी भी आपका एक मैसेज कल का एक कुछ है जिसमें आपने सारा डिटेल दिया है अपने ऑनगोइंग प्रोग्राम्स का. एंड इट वाज लवली. आपको भी यहाँ पर लाइव सुनना, आपसे ऐसे बात करना, ये इट इज एन ऑनर फॉर अस एज द वाटर डाइजेस्ट टीम आल्सो. एंड आई एम श्योर ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु जॉइंड अस लाइव टुडे through Facebook pages of Ministry and also Water Digest found this overall water talk really interesting. और जितने भी क्वेरीज हम यहाँ ले पाए हमने टाइम के साथ और नेटवर्क ने जितना हमारा साथ दिया हमने वो सारे क्वेरीज लिए. अगर फिर भी किसी का कोई क्वेरी है, कोई मैसेज है जो आप राजेंद्र सिंह जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें लिख सकते हैं. और जो भी इसमें क्वेश्चन आए हैं वो नेशनल वाटर मिशन की वेबसाइट पर हर टॉक के बाद अपडेट होता है. तो पुराना भी अगर कोई टॉक हुआ है जिससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, यू मे प्लीज विजिट द वेबसाइट ऑफ नेशनल वाटर मिशन. और घर पे रहिए, द वेव नंबर्स आर इंक्रीजिंग, सो प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम and utilize your time constructively by listening to such wonderful talks and also wonderful programs and training programs going on, and do contribute in whatever way you can. All right, thank you so much and stay safe. And like I mentioned, also there is one interesting Ganga Quest going on. So please join that Ganga Quest and not just register, but please be ready to win the prizes by watching and playing the quiz live. All right, thank you so much. Stay safe. Thank you so much, Ashok sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Very good.